ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 7 ਘੰਟੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। सोनिया गांधी ਦੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 2019 ਚ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਹੱਥ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਫੜਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਸੈਂਜਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਲੂਸੀਆਨਾ 'ਚ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1964 'ਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 1991 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। मैं अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी, मगर मेरे पति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए। उनके साथ मैंने देश के कोने कोने तक दौरा किया, लोगों की समस्या को समझा, देश के सामने चुनौतियों को पहचाना। इंदिरा जी की हत्या के बाद 7 साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ? ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਮਚੀ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1997 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ 62 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ।
जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व उभर रहे हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। मैं सुहागिन यही बनी, माँ यही बनी, मैं विधवा आपकी आंखों के सामने हुई। इस देश की सबसे महान पुत्री इंदिरा जी ने अपनी सांस मेरी बाहों में तोड़ी। मेरे खून की एक एक बूंद कहती है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ਚ सांसद ਬਣੇ। यूपी ਦੀ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਲੈਣਗੇ। शायद ही किसी लीडर ने इंज का ऐलान पहला कदी कीता होवे। हालांकि सुषमा स्वराज नूं ऐसा कुछ नहीं करना पिया, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद ही इस ओहदे नूं ठुकरा दिता। संसद दे सेंट्रल हॉल तो ऐलान किया। साथियों, मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के मुताबिक चलूँगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूँ। आखिरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ 10 ਜਨਪਦ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪੀਐਮ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। 2020 कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संगठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संज्ञान लिया। सीडब्ल्यूसी ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्श किया एवं विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में
नंबर 1, कोरोना महामारी है जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2, तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3, करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4, चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। दूसरा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूर्ण विफलता को उजागर करने व विभाजनकारी राजनीति एवं भ्रामक प्रचार प्रसार का पर्दाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रीमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजपा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की। श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना महामारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्थ्य सेवाएं व इलाज समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो सकें। उनके नेतृत्व ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को झकझोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया। श्री राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का दृढ़ता से नेतृत्व किया। कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता की व्यापक राय व इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों व प्रयासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। तीसरी व एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। जबकि सरकार जनता को अपने खोखले व स्वनिर्मित मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है। उनके नेतृत्व में करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थक बाहर निकल पड़े ताकि मौजूदा भाजपा सरकार के अधीन शासन की भारी कमियों की भरपाई हो, जिनकी वजह से गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को अपने अधिकारों व आजीविका से वंचित होना पड़ा। चौथा, सीडब्ल्यूसी ने इसका भी संज्ञान लिया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। पांचवां, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ। आनंद जी, the
members of the Congress Working Committee unanimously, Pradesh Congress Committee presidents, leaders of opposition, or wherever we have ruling parties, leaders there, members of parliament in Lok Sabha and Rajya Sabha, and more importantly, the ordinary millions and millions of ordinary Congress workers have on innumerable occasions raised their voice to say that they want Shri Rahul Gandhi to come back and take over the presidentship of the Indian National Congress. That's a sentiment that was also again expressed today by multiple or almost all members of the all members of the Congress Working Committee. But as we are all aware, the election, we are a democratic party, and the election will be held of the next president in a AICC session, dates for which at an appropriate time will be fixed by General Secretary organization. And it is the wish of everyone, including myself, that Shri Rahul Gandhi should take over. But I cannot predict what will happen in an AICC session, because that's the unanimous opinion of all Congress workers and leaders. कांग्रेस में हमारे जो महासचिव प्रभारी हैं संगठन के, उनकी अनुमति से ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और इस परिवार में वैचारिक असहमति की अनुमति है, और बहुत बार हम व्यक्तिगत या वैचारिक तौर से असहमत होंगे, पर आखिर में हम एक हैं, क्योंकि यही कांग्रेस की विचारधारा है और यही इस देश की परिपाटी भी। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने यह भी कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ना है, जिनके अधिकारों पर आज की मोदी सरकार ने एक कुत्सित हमला बोल रखा है। वो चाहे रोजगार या रोटी का विषय हो, वो चाहे चीन के दुस्साहस और चीन के कब्जे का दुस्साहस हो, चाहे वो कोरोना पेंडेमिक में सरकार की विफलता हो या जनता से जुड़े अन्य मुद्दे हैं। इन सब पर हमें एक परिवार एकजुट होकर एक सूत्र में पिरोए जाकर हमें मिलकर लड़ना है। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने यह भी कहा कि वो किसी साथी या सहयोगी के प्रति ना उन्होंने कभी द्वेष रखा, ना कभी कोई दुर्भावना रखी। चाहे किसी साथी या सहयोगी ने कितने भी ठेसपूर्ण शब्दों का आज या इससे पिछले सालों में उनके बारे में इस्तेमाल किया या प्रयोग किया, और उन्होंने आह्वान किया सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं, सभी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों और पार्टी के सभी पूरे संगठन को कि आइए मिलकर 130 करोड़ लोगों की आवाज और उनकी समस्याएं उठाएं, क्योंकि यही हमारा असली देशभक्ति है और यही राजधर्म है। काश मैंने पहले भी कई बार कहा है कि काश मैं भविष्य में झांककर सब बातें आपसे साझी कर सकता तो अवश्य करता, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। पर कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों, देश के कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, कांग्रेस के संगठन में काम कर रहे लोगों और कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण जो साधारण कार्यकर्ता हैं, उनकी ये दिली इच्छा है कि श्री राहुल गांधी जी जल्द से जल्द आकर कांग्रेस का नेतृत्व करें। इसका निर्णय कांग्रेस का अधिवेशन। इसे दे नाल मैनूं दिओ इजाजत। पर देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो एबीपी सांझा।